ये दिल्ली विश्वविद्यालय है। एक समय था जब यहाँ की कट ऑफ मतलब एडमिशन कितनी परसेंटेज पे होगा वो जाया करती थी 98-99%। मगर अगर अब रिपोर्ट्स की माने तो जो बच्चों की संख्या है एडमिशन्स के लिए वो कम हो रही है। मसलन कि हर साल जो वेकेंट सीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जबकि एक समय में यहाँ कतारें हुआ करती थी उन बच्चों की जो एडमिशन्स लेना चाहते थे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, वही समझने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। बच्चों से ही जानेंगे कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का क्रेज जो एक समय पे चरम पर था और उत्तर भारत के और साथ ही साथ पूरे भारत में वो बच्चे जो कुछ खास कोर्सेज करना चाहते थे उनके लिए कुछ कॉलेजेस और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय एक ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था। वो चाहते थे कि वो आएँ और यहाँ पढ़ें। मगर क्या अब जो रिपोर्ट्स कह रही हैं ये किसी सच की तस्दीक करती हैं? क्या ये बताती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वो क्रेज़ कम हुआ है या नहीं? थोड़ा सा बात करेंगे जो छात्र हैं उनसे, छात्राएं हैं उनसे, कि असल में क्या ऐसा कुछ है या नहीं। आंकड़े अपनी जगह हैं और अखबारों के हेडलाइंस अपनी जगह, लेकिन असली सच तो वो बता पाएगा जो अपना बस्ता उठाकर पहली बार कैंपस पहुंचा है। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसके लिए ड्यू आना किसी सपने से कम नहीं था। तो सबसे पहले हमने इन्हीं स्टूडेंट से बात की और हमने टटोला कि जिस ड्यू ब्रांड को देखकर इन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था तो क्लासरूम के अंदर वो चमक अभी भी बरकरार है। So, hi, this is Agrima from BSc Physical Sciences. I don't think DU has lost उसका charm. Rather, क्योंकि in daily life, for example, I have these neighbors who are younger than me, and they were still very, involved in the process of getting involved into DU or getting an admission into DU, whether it be in the first list, second list, या mob up round, कैसे भी they wanted to be in DU. So I don't think it has lost that charm. Rather, I would say कि I would blame the education policy for this. क्योंकि I think that has changed a lot. मतलब बहुत लोगों का perspective has changed about academics. They are thinking कि इधर आके भी if they are getting the same level of education that they would be getting in a private institute, so people are not willing to कि वो उतना money spend करके rather they would come here. तो they are choosing कि हम अपना home state में रहें या फिर उधर रहकर they can continue. The expectations were like it's Delhi, you get exposure, there are teachers who are like graduates who are learned and everything. They are here because of their education, they are very intelligent and everything. So yeah, when I came to the university, yes, I saw that the professors were very good and they are very helpful and everything. So yeah, I would say my expectations have been met in a way. Yeah, so I don't think DU has lost its charm, but it's that the people want different things, so they opt for different things, and it is not for everyone. They do opt for whatever they are comfortable with. So, But yeah. there's a big question about. I'll just have one more question to add up. There's a big question around the ad hocs. The students, those who are the faculty, those who are here right, exactly on the contract basis, and a few of them are working since last 7 to 8 years, but they're not been they're not permanent over here. So is it something which you believe that might be a reason because of what the level of education that student might think of getting over here will hamper or will get affected in any way? I mean, I've not exactly seen that in my college, in my studies, but I can't say that for everyone else. The teachers that are in our college, they are very supportive, they are very helpful, they are very, eager on their job, they are very sincere to their job. So I don't think Even the associate even the social professors, they are very sincere, they do their work, they do everything. They help you out. Yeah, they help us out, yeah. Diksha. Disha, where you from? I'm from Haryana. Haryana. Reason choosing Delhi University? एक्चुअली मेरा फिक्स था मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है एंड रीज़न वाज लाइक मेरा मतलब नॉर्थ साइड की ही हूँ एंड आई हैव बीन टू साउथ schools and all as my father is from defense background. So there are language barriers. I know colleges like my sister has studied in Bangalore. So रहना वगैरह it's very difficult. So for my mental health वगैरह सबके लिए I was like कि मुझे दिल्ली ही जाना है and DU was my first priority. So I was like DU ही जाना है and my रिलेटिव्स भी हैं जो DU में पढ़ चुके हैं तो उनकी गाइडेंस लेके I was like कि तो जो रिलेटिव जो पढ़े हैं DU में या फिर पहले जो सीनियर्स भी हैं उनसे अगर कभी बात होती है
So do they ever, क्योंकि बड़े लोगों के साथ ना इशू होता है, वो क्या कि हमारे टाइम में तो ऐसा था. हाँ, So does it हाँ. ever happen? नहीं मतलब अभी मतलब इतने भी बड़े नहीं थे, मैं जिनसे बात की है वो रिसेंटली ही ग्रेजुएटेड थे. सो आई वाज लाइक कि हाँ मतलब हिंदू कॉलेज वगैरह, नॉर्थ कैंपस इज बेस्ट, ऐसा. तो आई वाज लाइक कि हाँ पूरा सब कॉलेजेस का लिस्ट वगैरह देख के ही आई प्रेफर्ड, तो इतना कुछ बैरियर नहीं So था. this is a question for all three of you, na? If somebody will come down and ask you, just suggest me a university or a college, Delhi University. Yeah, for sure. Yeah, I would, yes. या श्योर. Do you seriously think that it might have lost its charm or anything like that? No, I don't think so. Because even I got a choice. I was studying in St. Xavier's, but I left Xavier's just to come into DU. So I feel like it hasn't lost its charm And why did you came to Delhi University? What was the main reason behind that? because of the name. Like, yeah. Okay. Because DU is like DU. No, I feel like it's better than CU. Okay. Yeah. So that was my reason. Some universities in the northeast as well. But if you compare those universities to out here, it's like a very vast difference. So I feel like the obvious choice is DU. Obvious choice. Yeah. So back in the days, how was the situation that the students from the northeast were very willing to coming to DU, or they're still willing? What exactly is the situation? I feel like during my father's time, like they didn't have an idea about DU. Like even he didn't know what is DU. That's why. Okay. And now the situations have changed. Yeah, because now my dad came to know, and he was the one who informed me about DU. So I feel like now they know. The name, obviously. I'm a Hindu, that's why. If I wouldn't have got Hindu, then I wouldn't have come here. There's so many people still taking dropouts for taking drop years for giving CVT again, so that they can come here. नए स्टूडेंट का जोश तो आपने देख लिया, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटीज़ की रग रग से वाकिफ़ वो होता है जिसने यहाँ की कैंटीन और लाइब्रेरी में अपना जूता घिसा हो. इसलिए हम पहुँचे मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के पास. ये वो पुराने चावल हैं जिन्होंने DU को बदलते देखा है. इनके पास तुलना करने के लिए वो पुराना वक्त भी है और अभी के नए दौर का भी. जानते हैं इन्हीं सीनियर स्टूडेंट्स की राय, क्या वाकई में दिल्ली विश्वविद्यालय अपना चार्म खोता जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय, हर एक स्टेट की अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है. तो लाइक दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज मेनली क्यों है, क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे. लाइक नेशनल टेरिटल अपने कैपिटल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये सबसे मेन चीज़ है कि ऑल अराउंड ऑफ इंडिया के स्टूडेंट, क्योंकि हम कैपिटल में पढ़ना चाहते हैं. लाइक वी हैव ऑल ऑफिस, आप यूपीएससी का लगा लो, आप डिफेंस का लगा लो, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का लगा लो, उनके सारे के सारे ऑफिस दिल्ली के अंदर हैं. तो अगर इस स्टेट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है जो ऑल अराउंड एंटायर अपने 28-29 स्टेट्स के स्टूडेंट को गैदर कर रही है, तो एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट का बच्चा आपको मिल जाएगा और ईच एंड एवरी कोर्स यहाँ पर ऑफर हो जाएंगे इजीली. ये है इसका use. बिल्कुल. मगर अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हर साल जो वेकेंट सीट्स हैं, खाली पड़ी हुई सीट्स हैं, और ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ रहा है. क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि एक समय हमने देखा है 98-99% तक जो पहली कट ऑफ जाया करती थी, और आज मॉप अप चलाना पड़ता है प्रोग्राम. जब मैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब मैंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था, कट ऑफ हमारे 99.6 ही गई थी. लेकिन उस मोमेंट पे और आज में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है. तो उसके अंदर क्या किया कि हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया. अब पहले एडमिशन DU के होते थे, सिर्फ DU के एंट्रेंस एग्जाम या फिर DU के एक पर्टिकुलर कट ऑफ के बेसिस पे. तो सारे के सारे पूरे भारत के यूथ चाहते थे कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं जहाँ पर काफ़ी अच्छा क्रेज हो. लेकिन जब से CUET PG का एडमिशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि आपके स्टेट में, आपके नियर बाय हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके अपने कॉलेजेस हैं, उनको भी इंक्लूड कर दिया. तो जहाँ ऑप्शन पहले बच्चा देखता था कि मैं DU में जाऊँ, लाइक IIT में इनमें जाऊँ, अब उनके पास कम से कम 10,000 15,000 ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम्बल्ड हैं. फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को, लाइक कोई दूर दराज का है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अगर दिल्ली भेजता हूँ फॉर एजुकेशन, तो उन्हें पता चला कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ही स्टेट के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं और वो भी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड है. तो अब और यूनिवर्सिटीज़ की अपलिफ्टमेंट हुई है, ना कि DU की डिलिफ्टमेंट. तो उनकी अपलिफ्टमेंट के कारण उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ी. तो जो वैकेंट सीट थी दूर दराज की, वो DU से ना होकर वहाँ शिफ्ट हो चुकी है पूरी की पूरी. क्रेज DU का उतना ही आज भी है. और रही बात मॉप अप राउंड की, और आप जो चीज़ पूछ रहे थे कि यहाँ कट ऑफ में गिरावट क्यों आई है,
कट ऑफ में गिरावट आने का मेन रीजन है कि पहले यहाँ एडमिशन होते थे 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, अब इन्होंने एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करवा दिया। तो जो क्रीम है वो क्रीम की ऊपर ऊपर की छटनी होगी। और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर लाइक स्टूडेंट पहले आज आईटी के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, बीटेक में, लॉ में, लेकिन कुछ हिंदी साहित्य के या फिर कुछ अदर कोर्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जहाँ पे क्रेज इतना ज़्यादा नहीं रहा आज के दौरान, टाइम के दौरान, तो वो बच्चे थोड़े से कम हुए हैं। क्रेज उतना आज भी बरकरार है पूरा का पूरा। See, I can only speak for Delhi. That is the Delhi city where I have been brought up. Not totally, but yeah, substantial part of it. So मेरा मानना ये है कि एक शिफ्ट तो आया है, जैसे आप बता रहे हैं। जब मैं अंडरग्रेड में था तो जो क्राउड था वो काफ़ी ऑल इंडिया कैरेक्टर का था। आई वुड से कि हमारे समय व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम किरोड़ीमल, आई वुड से कि आफ्टर लोकसभा एंड राज्यसभा कोई सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव प्लेस थी लाइक इंडिया में, तो इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी, since it was a central university and Delhi being, as my friend said, melting pot of various cultures. So that was the reason. But अभी जो एक चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, वो मुझे एक दो रीजंस की वजह से लगता है। दिल्ली की, अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूँ तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एक काइंड ऑफ इनकी एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी ओवर दैट थिंग की, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन जहाँ मिल रही थी, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते थे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते थे, एंड तो वो एक बहुत कुछ चुनिंदा कॉलेजेस ही थे कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल को मैच करते थे। आज की डेट में वी हैव वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो क्वालिटी एजुकेशन डिस्पेंस कर रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल, फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर है या तो उससे अच्छे भी है कुछ उनके डिपार्टमेंट्स। फिर दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, पासपोर्ट की अवेलेबिलिटी जो पहले बहुत कम थी वो ज़्यादा हो गई है, तो उससे जो स्टडी अब्रॉड का कल्चर है, जो मैं अपने जो फैमिली फ्रेंड्स के जो सर्कल में देख रहा हूँ कि पहले अब्रॉड जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लेक्स भी माना जाता था और बहुत बड़ा मतलब फाइनेंशियल हेडेक तो माना ही जाता था। बट आज की डेट में पासपोर्ट इज रेडिली अवेलेबल, सबके पासपोर्ट बन जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन सबकी वजह से, और जो स्टडी अब्रॉड के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आपके जो कोर्सेज है, पहले से फॉर एग्जांपल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ उतनी नहीं थी, अब आज की डेट में अगर किसी को लॉ करना है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ इज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, नो डाउट इन दैट, बट इससे भी बेटर काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ गए विच आर एनएलयूज। इन टर्म्स ऑफ NLUs, that is National Law Universities, आप 12th के बाद डायरेक्टली आप BLLB कर लोगे, you would not be required to pursue 3-year bachelor's program and then फिर उसके बाद 3 year, आप एक साल आपका बच रहा है। कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है, अगर हमें कोई चीज एक दुकान पे मिल रही है, अगर वही चीज या उसके बराबर की चीज अगर हमें और दुकानों पे नियर बाय दुकान पे मिल रही है, तो हर जना नियर बाय जगह पे जाना प्रेफर करेगा क्योंकि वो नजदीक है होम टाउन से, वैकेशंस में घर पे आना, घर के नजदीक। और लाइक DU की क्वालिटी एजुकेशन के अंदर फर्क देखो, एज ए स्टूडेंट जो मुझे फील हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे पढ़ना, आई कैन डू एनीथिंग, लेकिन अगर मुझे मेरी चॉइस है कि मैं यार यहाँ से अब्रॉड जाऊँ, तो DU में कितना भी अच्छा हो, लेकिन मेरे को जो मेरा ड्रीम परस्यू करना है वो, अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं जाना है तो मैं वहीं ही जाना चाहूँगा। तो जैसे अपने मेरे भाई ने बताया कि 2 फैक्टर जो मेनली थे, कि एक तो आज का यूथ एंटायर वर्ल्ड को अपनी फैमिली मान चुका है, वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली, सो दे वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई नॉट, लाइक इफ वी आर पेइंग, वी आर गिविंग आवर टाइम। तो पहले सिर्फ DU एक अकेला ऑप्शन था, आज ईज ऑफ कम्युनिकेशन, इजीली पासपोर्ट अवेलेबिलिटी, लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की अपलिफ्टमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है, तो जमाना चेंज होता है और उसी जमाने के दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ डाइवर्ट हो रहा है और अच्छी वे में डाइवर्ट हो रहा है। और सबसे पहले DU पे थोड़ा बोझ था कि यहाँ पे एडमिशन होना मुश्किल था, और इस चीज को मैं पॉजिटिवली लूंगा कि आज यहाँ एडमिशंस में कई बार लाइक सीट्स वैकेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि यार जो बच्चा DU में सच में DU को चाहता था, आज उसको एडमिशन लेने में थोड़ी आसानी हो रही है। पढ़ाई और माहौल तो बात की बात है, सबसे बड़ी माथापच्ची है कैंपस तक पहुंचने की। जब से ये CUET और ऑनलाइन पोर्टल का सिस्टम आया है, आरोप लगते हैं कि एडमिशन कम और सांप सीढ़ी का खेल ज़्यादा हो गए हैं। यही समझने के लिए हमने एक स्टूडेंट से बात करी, जानते हैं कि क्या कहना है उसका CUET के प्रोसेस पर, CSAS के पोर्टल पर और मॉप अप राउंड के गणित के बारे में। मतलब नया सिस्टम जब आ जाता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए वो ग्लिच तो रहता ही है, लेकिन CUET की वजह से ये हो गया है कि मतलब पूरे इंडिया से लोग अब आने मतलब आ सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। तो
सो स्पेसिफिकली जब मतलब आपके 12th के नंबर्स पे आ जाते थे तो मोस्टली कुछ CBSE से पढ़ते थे, बाकी कुछ स्टेट बोर्ड से पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ा इनहेरेंट बायस भी होता था, कुछ स्टेट बोर्ड ज़्यादा नंबर दे देते हैं, कुछ कम दे देते हैं, तो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट। तो वो फिर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रीजन स्पेसिफिक हो गई थी कि सिर्फ इन्हीं इलाकों के लोग के लिए एसेसिबल हो पाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मतलब अगर हम एथिकली देखें तो 98%, 99% कट ऑफ्स आर नॉट लाइक, दे डू नॉट इम्प्लाई कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, या मतलब इट्स मोर ऑफ अ लक इवेंचुअली। अलबत्ता CUET से ये होता है कि आपको एक बेस लेवल पे ये मिल जाती है, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है। CUET is will that now the preferences just because of CUET की वजह से हाँ। जो प्रेफरेंसेस हैं और बहुत ही ऐसा ओपेक किस्म की एक पूरी व्यवस्था है, ये इस पे आरोप लगते हैं CUET पे। नेचुरली ना, मतलब अब आपको वो फिर तो SOPs फॉलो करना है ना, मतलब जिस प्रोसीजर से ये CUET हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स उसमें आने चाहिए, रादर देन कि आप कहो कि भाई CUET बकवास है। सो रादर देन कि हम सिर्फ ज़ीरो कर दें इसको, वी शुड इम्प्रूव कि उसका सिलेबस इजीली अवेलेबल हो और उसको ज़्यादा ओपन किया जाए। जैसे DSC में पढ़ना, इट वाज वेरी DU सेंट्रिक। सो ये नहीं होता था कि जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया होता था, इवन ओनली दे वर द गाइज हू यूज्ड टू स्टडी इन DSC। हालांकि इट्स एन इंस्टीट्यूट दैट्स रेप्यूटेड ग्लोबली, और मतलब तो इसका सबसेट अब बड़ा हो गया है कि CUET की वजह से अब मतलब वो स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, जो मतलब इंडिया के बाकी रीजन से पढ़ते आ रहे हैं, सो दे कैन ईजिली कम हियर एंड मच मोर एक्सेप्टेबल फॉर देम। नेचुरली जो DSC से पहले कोर्सेज, इससे पहले एग्जामिनेशन लेता था, इट वाज मच टफर आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ का एकेडमिक रिगर और स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है। अलबत्ता अब CUET से कह सकते हैं कि वो थोड़ा एकेडमिक रिगर कम हो गया, वैसे स्टूडेंट्स नहीं आते, बट इवेंचुअली इट विल ऑल कैच अप एंड इट्स अ गुड स्टेप। Your good name? बासिन। Basim. I think you're a student of Yeah, DSC. economics. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। तो हमने आपको अलग अलग मत सुनाए, मगर सब में एक चीज़ मेरी समझ में आई, कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, आपने भी देखा है, कभी किसी चीज़ को कवर करने, कभी किसी बात के बारे में लोगों से उनकी राय जानने। एक चीज़ जो सबके मुंह से हमने सुनी वो ये है कि डेटा और रिपोर्ट्स चाहे इस ओर इशारा कर रहे हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना जो चार्म एक समय में हुआ करता था छात्र छात्राओं के बीच, वो कुछ कम हो गया है। मसलन कि हर साल जो वेकेंट खाली पड़ी हुई सीट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मगर उससे इतर जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ पढ़ने की चाह और जो एक जगह उनके जहन में आज भी है वो वैसे ही बरकरार है। बहुत सारे और कारण हैं जो कि गिनाए गए यहीं के छात्रों के द्वारा, मगर अगर आने वाले समय में कुछ ऐसी ठोस कोई और रिपोर्ट आती है या फिर आपको लगता है कि इसमें और विस्तार थोड़ा सा होना चाहिए, तो कमेंट में हमें लिखिए, हम थोड़ा सा और इस पर विस्तार करेंगे और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक आप अपना सहयोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए नई दिल्ली।